ତମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଜାଣିବୁ, ଅଧିକ ଭାବରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପାରିବୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଇ ପାରିବୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ତୁମ ସେହି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ତୁମ ସେହି ରୋଗକୁ ଯେପରି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। Hallelujah. Praise the Lord. बहुत प्रिय भाई एवं बहनमाने, प्रभु को एक सुंदर सुजोग देइछन्ति तांकर वाक्य सुनबा पाई। मोर वॉइस लास्ट पर्यंत क्लियर होची? वाक्य शुणा द्वारा आमर विश्वास जीवन वृद्धि पाई था। जिते वाक्य शुणवे आम अवहेला कर विश्वास जीवन शिथिल हो जाए, दुर्बल हो जाए। आमे ईश्वर ठारू दूर को कौन गई ना चल जाऊ। तेणुक विषय आमको सावधान होगा पड़ो एवं सतर्क रहा पड़ो। ये वाक्य आमको जगत ठीक पथरे उपयुक्त पथरे जीशु पथरे जीवाई आमको कौन करता ना साहाय्य करता है। जिते आमको ये वाक्य शुणा सुजोग मिलूँ, से सुजोग को आम उपयुक्त भाव व्यवहार करने को पड़ो। ईश्वर वाक्य आम समस्त केते बहुमूल्य मैंने जाना आवश्यक। रूपा सुना एवं मुक्ता ठारू ईश्वर वाक्य बहुमूल्य अटे। आज हूँ वर्षर शेष दिवस, शेष दिन, शेष सप्ताह एवं शेष रविवार। आज हूँ वर्षर 365 दिन शेष दिन। आउ किछि घंटा परे आमने 2023 मसीहा को वर्ष को आमने कौन करिबो ना समाप्त करिबो आमकर जीवन में। मनुष्य जीवन में समय सबुठारू मूल्यवान विषय अटे।
ବର୍ଷର 2023 ମସିହାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି ସେହି ସମୟ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ସମୟକୁ ଆଉ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ହାତ ଟେକିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଟେକିବେ, କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ମାତ୍ର ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 105 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଟେକନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ଏ ବିଷୟ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ପାରିବାରିକ ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କର ପାଠ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ 365ଟି ପଦ ଆମେ ବର୍ଷରେ କଣ କରିବା ନା ମନେ ରଖିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ 365 ଦିନରେ 365ଟି ପଦ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବା। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟର ପଦ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବାଇବେଲରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପୁରାତନ ନିୟମ ନା ନୂତନ ନିୟମରେ ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଟେକିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ବାଇବେଲ ଦେଖିଲେ କି ନା କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କି? ସେମାନେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ ଯେ ଏହି ପଦ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେହି ପଦ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବକ୍ତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ପଦ ପର୍ବ ବା ବାଇବେଲରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନୂତନ ନିୟମରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ନୂଆ ନୂଆ ପଦ ଶିଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇବେଲର ପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ନୂଆ ପଦ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କେହି ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି, କେହି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କର 52ଟି ସପ୍ତାହ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ 52ଟି ପଦ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ପାରିବେ।
ईश्वरंकर वाक्यर प्रतिज्ञा सबू स्मरण रखिबा पाई यह गोटे सहज एवं सरल उपाय। यह द्वारा आमे आत्मिक जीवन में लाभवान हो पार आमर व्यक्तिगत विषय। जिते आमे नूतन वर्ष 2023 नूतन वर्ष को देखिलु आमे आम जीवन रे आमर परिवार पाई अनेक विषय चिंता करथिलु, योजना करथिलु एवं योजना मध्य प्रस्तुत करथिलु। अनेक विषय आत्मिक जीवन में मध्य चिंता करथिलु, किंतु आज वाक्य सुनवा समय नहीं। आज होची आत्म समीक्षा परिवार दिन अटे। हालेलुया। मु मो जीवन रे कौन करि पारिछि, ईश्वरंकर आह्वान को मो जीवन रे किपरि भाव रे कार्यकारी करि पारिछि। ईश्वर मोर एवं मोर परिवार को प्रेम करी समस्त विषय विश्वस्त भाव रे जत्न नहीं आसिचंती। कौनसी विषय ईश्वर आमार परिवार को गुणा करी नांती। वर्षर शेष दिन आज दिन पर्यंत सुस्थ सबल शरीर रखिचंती, मते जीवित अवस्था रखिचंती। अनेक एही वर्ष शेष दिवस को निज जीवन में देखिबा पाई इच्छा करथिले, किंतु सेमाने एही सुयोग पाई पारनांती। किंतु प्रभु अमान को एही सुयोग देचंती। हालेलुया। किंतु ईश्वर को पाई मु कौन करि पारिछि, ताकर सेवा कार्य पाई किपरि भाव रे समय दे पारिछि। प्रार्थना रे ईश्वरकर निकटवर्ती हेबा पाई केते समय देछि। आज से समस्त विषय रे आत्म समीक्षा करबा पाई ए समय आसीछि। वाक्य सुनिबा समय में आत्म समीक्षा करबा समय ए होते। आज ईश्वर आम समस्त को पचारचंती, मु तोर समस्त विषय जत्न नहीं आसी। कौन सी विषय तोर असुविधा सम्मुखीन होगा दे नहीं। समस्त विपद तोते रक्षा करी आसी। तोर समस्या समाधान करी। ईश्वरकर राज्य वृद्धि पाई आउ तू कौन करि पारिछ। ईश्वरकर राज्य विस्तार करिबारे तू कि प्रकार भाव रे सहायता करि पारिछ। सुसमाचार अन्यमान को निकट रे पहुंचेगा पाई केउ विषय तू करि पारिछ। प्रतिज्ञा करिथिली, किंतु प्रतिज्ञा को कार्यकारी करि पारि नहीं, पालन करि पारि नहीं। ईश्वर समस्त मंगल दान देई शेष दिवस पर्यंत कड़ाई आछन, किंतु ईश्वरकर मंगल दान गुड़िक स्मरण करी धन्यवाद करबा अपेक्षा ताकर मंगल दान गुड़िक मो जीवन रे मु कोन करछि ना पासोरी जाउछि। तेणुकरी आमे जो प्रतिज्ञा करिथिलु आ जो योजना करिथिलु ता माने सफल करि पारिनाहु। सेति पई आमानकु कोन करबाक पड़िबो। आमानकु से यीशु को निकट को आसबाक पड़िबो, तांकर पाद तल को आसबाक पड़िबो, तांकर पाद को धरिबाक पड़िबो।
पड़िबो, अश्रुपात करबाक पड़िबो, क्रंदन करबाक पड़िबो एवं प्रार्थना करबाक पड़िबो। आउ मुझा प्रतिज्ञा करथिली ता करि पारि नाही, सेति पय आमान को कोन करबाक हबो, क्षमा भिक्षा करबाक पड़िबो। आउ से दया करिवे एवं से आमान को क्षमा करिवे। हालेलुया। प्रथम जोहन 3 अध्याय 24 पद हम सब बड़े वाक्य पालन उपरे गुरुत्व दे आसी। सही स्थान रे लिखा जाउची जे ताहांकर आज्ञा पालन करे से ताहांक ठारे रहे ओ से ताहारे रहती। जो माने ताहांकर आज्ञा पालन करत। 23 पद रे लिखा होची आम्भे माने ताहा निकट को आसी ताहा सहित वास करिबा। एटी बहुवचन लिखा होची आम्भे माने ताहा निकट को आसी वास करिबा। यीशु कहले मु आसीबी, पिता मध्य मो सहित आसीबे, पवित्र आत्मा मध्य मो सहित आसी वास करिबे। जदि मु ईश्वरकर सेही प्रतिज्ञा वाक्य मो जीवन रे पालन करूछि। वाक्य पालन द्वारा आमान को कौन उपकार मिलता है? पुत्र ईश्वर आम सहित रहिबे, पिता ईश्वर आम सहित रहिबे, पवित्र आत्मा ईश्वर मध्य आम सहित रहिबे जेतबे आमे वाक्य को पालन करिबो। कोनोसी विषय रे आमने भय करिबा नाही। एई जगत रे आमने काहाको मध्य भय करिबा नाही। एई जगत रे आमने निर्भय रे वास करि परिबा, निर्भय रे जीवन काटि परिबा। कोनोसी मनुष्य को भय करिबा नाही, कोनोसी शत्रु को भय करिबा नाही, कारण यीशु आमानकर सहित अछंती। पिता ईश्वर आमानकर सहित अछंती। पवित्र आत्मा ईश्वर मध्य आमानकर सहित अछंती। वाक्य मध्य को जीवा आमने जो वाक्य अध्ययन करिजु ता पुणी आउथरे मु पाठ करी सुनाइबी। ता होची आमानकर ईश्वरंकर अनुग्रह विषय से स्थान रे लिखा जायछि। जोहन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय तार 16 एवं 17 पद। एणु ताहांक पूर्णतारु आम्भे माने समस्त प्राप्त होइछु। हाँ, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त होइछु, कारण व्यवस्था मूसाक द्वारा प्रदत्त हैला, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु ख्रीष्ट द्वारा उपस्थित हैला। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह आज आमने ए दिन को आमने आमान जीवन रे देखबा सुयोग पाई पारे। ईश्वर अनुग्रह कहले आमने कोन बुझिछ? ईश्वर अनुग्रह बोले आमने सुनिछु, किंतु ईश्वर अनुग्रह बोले आमने कोन बुझिछ? जो विश्व पाई आमने परिश्रम करिनाहु, जो विश्व पाई आमने मूल्य देनाहु, जो विश्व पाई आमने योग्य नहु, जो विश्व को आमने आमनको जीवन रे अपेक्षा करिनथिलु, जो विश्व को आमनको जीवन रे आशा करनथिलु, सेही विषय आमने पाई पारिछु। ता होची ईश्वरकर अनुग्रह। हालेलुया। ता परमेश्वरकर अनुग्रह अटे। आउ ए अनुग्रह गोटे आत्मिक विषय अटे। आमे लेखा जाउची ताहांक ठारू
ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଜୀବନରେ ପାଇପାରୁଛୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କିପରି ଆସିଲା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ପଦ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ କରିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ସେହି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ 6ଠ ମାସରେ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ମରିୟମଙ୍କର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଯୀଶୁ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମରିୟମଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ଆସିଲା। ଏଫିସି ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ। ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ତିତୋସ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତିତୋସ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ, ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। 2 Corinthians ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ,
कारण से कहती आम्हे अनुग्रह समय तुम्हार प्रार्थना श्रवण करू आउ परित्राण दिन आम्हे तुम्हार साहाय्य करू। देख एबे महा अनुग्रह समय, देख एबे परित्राण दिन। आमको परित्राण पाइबा पाई ईश्वरकर अनुग्रह आवश्यकता रही। ईश्वर ठारे विश्वास करने द्वारा आमको कौन कर ना परित्राण मिलता है। विश्वास गोटे फल आत्मांकर परित्राण। अनेक आज परित्राण पाई किंतु ईश्वरकर अनुग्रह को से अनुभव कर तेणुकरी ताहा परित्राण नुहे। ईश्वरकर अनुग्रह को विश्वास करी परित्राण पाइबा। ईश्वर का अनुग्रह को वाक्य माध्यम आमको ठीक भाव में बुझा पड़ो। ईश्वरकर अनुग्रह विषय वाक्य अनेक विषय लिखा जाइए जहाँ कहले ताहा शेष हेबना। प्रेरित कार 20 अध्याय 24 पद लिखा जाउची अनुग्रहर सुसमाचार। अनुग्रहर सुसमाचार आमको केउ केउ रूप में मिलता है। जेतेबेले सुसमाचार वक्ता द्वारा प्रचार करा जाए सेतेबेले ईश्वर कौन करथांती ना आह्वान करथांती। ईश्वर कौन करथांती ना डाकी थांती। वाक्य माध्यम जेतेबेले सुसमाचार स्थान प्रचार करा जाए सेतेबेले ईश्वर आह्वान करती आउ आह्वान को डाकी थांती। आ से कहती जीशु हमर पाप पाई कृषक गले करुणा मान खाइले मन परिवर्तन कर पाप क्षमा पाई जीशु ठारे विश्वास कर अनुताप कर तारे तुम माने कौन करिवो ना परित्राण पाइबो। आजिकाली केउ विषय सुसमाचार प्रचार करा जाउची। सुस्थता विषय सुसमाचार प्रचार करा जाउची। धन पाई सुसमाचार प्रचार करा जाउची। गृह निर्माण करबा पाई सुसमाचार प्रचार करा जाउची। जमी बिक्री पाई सुसमाचार प्रचार करा जाउची। परित्राण पाई सुसमाचार प्रचार करा जाउ नाही। जो भी सुस्थता पाई मीटिंग होची लोक मैंने से स्थान को धाई नहीं जाउछंती। तुम जदि क्रिस्टियन हबो धन मिलिबो गृह मिलिबो आउ सुस्थता मध्य पाइबो ए विषय प्रचार कर जाउछि। किंतु परित्राणर सुसमाचार आजिकाली बहुत कम देखा मिले। स्वर्ग रे এই সমস্ত বিষয় পাই আমানে প্রবেশ করি পারিবা না। যেতবে দূত সেই স্বর্গর গেট পাখে ছিড়া হইছন্তি আর জনে ব্যক্তি আসছি কইছি মু পুরা ক্যান্সার সুস্থ হইলি গেট খোলো। দূত কইলি না। আর জনে আসি কইছি মু পুরা HIV ରୁ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲ। ଦୂତ କଇଲି না। आउ जने कहूँ मु किडनी रोग रे पीड़ित होइतिली गेट खोलो। दूत कहले नाही। एई समस्त विषय शारीरिक विषय अटे। शरीर आज केउठी समान रही शरीर कवर भीतर रही। ईश्वरकर
राज्य प्रवेश करने से आत्मांकर परित्राण आवश्यक। जदि परित्राण प्राप्त होती यीशु ठारे विश्वास करते अनुग्रह विश्वास करते स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे। शारीरिक विषय पर स्वर्ग राज्य प्रवेश करें नहीं। अनुग्रह समय आमानकर शेष हो आसुची। अनुग्रह समय वर्तमान रही किंतु ताहा धीरे धीरे शेष होगा जाऊँ। शारीरिक विषय विशेष भाव में जितेबाला आम किपट जाना जे अनुग्रह समय शेष हो जाते शारीरिक विषय गुड़िक प्रचार कर आजिकल सुसमाचार प्रचार कमिगला। आग भली सुसमाचार प्रचार ना खाली शारीरिक विषय सुसमाचार प्रचार कर विषय जितेबाला आपने शुणवे से जानवे जे अनुग्रह समय कौन हो शेष होगा बसला। प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय तार 10 पद लिखा होची किंतु जहा होइछि ता ईश्वर को अनुग्रह होइछि आ मो प्रति प्रदत्त काहकर से अनुग्रह व्यर्थ होई नहीं। तथापि मु नुहे किंतु मो सहित थिबा ईश्वरकर अनुग्रहता करिछि। हालेलुया। आपण ऊपर ईश्वरकर अनुग्रह नथिले आपण किछि करि परिबे नहीं। अनेक विषय आपण चिंता करचंती करबा पई अनेक विषय आपणकर जीवन में लक्ष्य रही करबा पई अनेक विषय आपण आशा करचंती करबा पई अनेक विषय आपण इच्छा करचंती करबा पई जदि ईश्वरकर अनुग्रह आपणकर सहित अछि ताहाले आपण समस्त विषय करबा पई सक्षम हे पाइबे। आज पर्यंत आपण जहा किछि होई पारछन जहा किछि मु होई पारछि ता पछरे केवल ईश्वरकर सेही अनुग्रह रहिछि। यीशुक द्वारा ईश्वरकर अनुग्रह को किपरि पाई परिबे सेति पई आपण माने चेष्टा करंतु। अनुग्रह पाइबा पई आमानकु ईश्वरकर निकटवर्ती हेबाकु पड़िबो। याकूब 4 अध्याय 6 पद रे लिखा जाउची। याकूब 4 अध्याय 6 पद रे लिखा होची नम्र लोक मानकु ईश्वर अनुग्रह करंती। नम्र लोक मानकु ईश्वर अनुग्रह करंती। ईश्वरकर अनुग्रह पाइबाकु हेले आमानकु नम्रतार जीवन आवश्यकता रही। गणना तार 12 अध्याय 3 पद रे लिखा जाउची बोसा पृथ्वी तो समस्त लोकंक ठारू अति नम्र लोक थिले। खाली नम्र लोक बोली लिखा नहीं अति नम्र लोक थिले पृथ्वीर समस्त लोकंक ठारू। ईश्वरकर अनुग्रह मूसांक ऊपर थिला। विभिन्न समस्या विभिन्न परिस्थिति मध्य से इस्राएल जाति को पढ़ाई सक्षम प्रथम तार 1 अध्याय 13 पद समय बाबू केवल चुंबक भाव में पद गुड़िक कहूँ। ईश्वरकर प्रथम 1 अध्याय 13 पद ईश्वरकर अनुग्रह पर आमानकु संपूर्ण भाव में भरोसा रखा पड़ो। आमानकु सचेतन होगा पड़ो। जागृत जीवन काटा पड़ो। प्रार्थनाशील जीवन काटा पड़ो। काटिले
आमे ईश्वर अनुग्रह उपरे आमे भरोसा रखा। एप्री तार 4 अध्याय 16 पद लिखा होती अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते उपयुक्त समय उपकार अनुग्रह पाइबा निमंते आमे साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ। अनुग्रह सिंहासन निकट को जीवा पाई आमकर पवित्रता आमको साहाय्य करिवो। आ अनुग्रह सिंहासन ठाकरे ठियाबा पाई आमको से अनुग्रह आवश्यकता रही। आमने किपरि पवित्रता सहित आसवा को पड़िबो टिके परे कहूची ईश्वर आमको किपरि भाव रे पवित्र करबे। ईश्वर आमको किपरि भाव रे पवित्र करबे। एफिसी तार 5 अध्याय 26 पद वाक्य और जल प्रक्षालन द्वारा से ताकू परिष्कार करी पवित्र करंती। वाक्य और जल प्रक्षालन द्वारा से ताकू परिष्कार करी पवित्र करंती। प्रक्षालन अर्थ होची सफा करबा। वाक्य परिष्कार करे रक्त कौन करे ना शुचि करे आ पवित्र करे। अनुग्रह सिंहासन समुद्र रे मते ठियाबा कोले आमानकु कोन करबा कहउतली से पवित्र विषय एब्री तार 10 अध्याय 22 पद लिखा होची हृदय प्रक्षालन द्वारा कलुषित विवेकरू शुचिकृत और निर्मल जल रे धौत शरीर हुई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास रे ईश्वरंकर निकटवर्ती अनुग्रह जोथि पई दिया जाई हमको सही उद्देश्य रे सेति पई से अनुग्रह को आमानकु व्यवहार करबा को पड़िबो। अनुग्रह जहाँ दिया जाइए ता आपण माने मिसयूज करंतु नाही। अनुग्रह को अपव्यवहार करंतु नाही। शारीरिक जीवन पाई शारीरिक अभ्यास पाई जगतर अभिलाष पाई ईश्वरंकर अनुग्रह को व्यवहार करंतु नाही। आत्मिक जीवन में ईश्वरंकर अनुग्रह को व्यवहार करंतु ताहारे ईश्वरंकर अनुग्रह आपण मानक सहित रे रहबो। पाळगौ वर्तमान आमनक पई प्रार्थना करिवे। आमने गोटे गीत गाइबा एई समय आमने निज को प्रस्तुत करिबा आउ समर्पित हवा नूतन वर्ष को शेष करबा पाई एवं नूतन वर्ष को स्वागत करबा पाई अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरी शरण में आते तन मन धन तुझको
जीवन अनेक भूल कर चिंताधारा कार्यकलाप 365 दिन मध्य अनेक प्रकार त्रुटि थे ईश्वर दृष्टि तो मैंने प्रभु पाद तले भिक्षा मांगा शेष समय समस्त ठिया प्रिय प्रभु तुम्हें जे राजा को राजा प्रभु कर प्रभु ए 52 सप्ताह हमारे ईश्वर का वाक्य शुणिचु आज मध्य तुम्हारा संग मुखदे ए अनुरोध समावन तुम्हें देशर कथा कहिस आमर जीवन एमती किछि योग्यता उत्तमता धार्मिकता नहीं केवल किसी समय तुम्हें आम सुजोग देश अनुरोध समय परित्राण समय पाप क्षमार समय नहले प्रभु आम ईश्वर राज्य में प्रवेश करवा असंभव। प्रिय प्रभु धन्यवाद तुम्हारा आशुक आशीर्वाद कर व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन प्रकाशित हो आज परित्राण संवाद परित्राण दिन आज आम जीवन केते सफलता से दिन ईश्वर राज्य घोषणा हम वाक्य थिला जे यह जगत गुप्त भाव में किसी छात पर प्रकाश कर छात हूँ स्वर्ग राज्य पिता परमेश्वर आम जीवन हृदय मन आत्मा प्राण को तुम चलता रखुछु आम अनेक अभिलाष था आज मध्य रही घात प्रतिघात संकट समस्या था तुम्हें उद्धार कले जीवन अनुतप्तर कथा तुम्हें जे पितर को कही 7 गुण 70 थर क्षमा देवा आज मध्य ताहा मन अपेक्षा कर तुम्हें जे प्रेमवान क्षमा नहीं प्रभु आज वर्ष तुम्हारा तुम्हें प्रभात्मा प्रकट कर कारण सब परमेश्वर तुम्हें हाँ प्रभु मध्य प्रार्थना करे तुम्हारा मंडली को परिचालन करे तुम्हें अधिकार कल प्रभु अनेक प्रभु को दास मैंने वाक्य दान कर वर्ष सारा से दान कले केते फलप्रद आम जीवन तुम पादतर अच्छी से अक्लांत परिश्रम को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रार्थना कर प्रभु जीशु विभिन्न स्थान को तुम दासदासी प्रभु वार्ता बहन कर जाते प्रभु से दिन महान प्रतिनिधि प्रकाशित हम आम आज अजर भाव जीवन अतिबाहित कर प्रभु 2023 मसीह आम जीवन गोटे मुख्य वर्ष भी हो पाए तुम बात कर प्रभु धन्यवाद प्रभु प्रत्येक परिवार का आशीर्वाद कर प्रत्येक आवश्यकता पूर्ण कर इतिमध्य प्रभु रोग संकट थी परिवार मान तुम छात्र रखीचु तुम से स्वर्गीय हस्त तुम्हें विस्तार कर तुम्हें से महान किसी घंटा पर प्रभु हमारे नुआ वर्ष नुआत्मा जल्दी सफलता आत्मा ने प्रभु तुम निकट आसो परस्पर मध्य प्रभु आलिंगन कर तुम निकट पर तुम्हें हे प्रभु तुम इच्छा ही सफल आमर 10 दुर्बलता प्रभु जीशु 70 गुण क्षमा कर तुम्हें गौरव कर
हम प्रभु निज निज गृह को चली जीवो ता पूर्व हमारे आत्मा को संजीवित कर शक्तियुक्त कर कारण केवे न केवे हमारे समय पुनः पड़िथिबा आमे जाना धन्यवाद हे प्रभु सब गौरव पूजा प्रशंसा नैवेद्य तुम बनाओ एतिक विनती पुत्र प्रभु यीशु का नाम रे ए भिक्षा हम करछु हमें प्रभु को प्रार्थना करियो ए हम बहुत को सर्व तुम्हारा पवित्र बने तुम्हारा जय परिसर से परिपति तुम्हारा इच्छा आज हमको प्रार्थना हमारे जीवन में जब प्रार्थना करो से प्रकार परीक्षा में हम बहुत पढ़े हाथ धोने निरंतर पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम प्रभु यीशु ख्रीष्ट पालुर पिता परमेश्वर को प्रेम पवित्र आत्मा का चिरंतन शांति शक्ति एवं सहभागिता आज पढ़ी तुम्हारा आगमन पर्यंत हम हृदय संगे सदा सर्वदा रहतु प्रभु समस्त सहवर्ती मध्यवर्ती हंतु आमेन।